पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज रेंजर्स के नाम आमिर खान। How are you? Welcome to Pakistan again. Again, I love this place. You know, it's like my home. But this isn't a boxing ring. This is a strange place for the king right. to visit. No, it is for sure. But you know, these people who have died by saving our countries, by saving our people, and the Rangers who are doing a great job. I want to come here and show my respects towards them. I'm glad. Amir, you work a lot with a lot of people in Pakistan. You worked with the Rangers. I know that you've done some competitions in Lyari for them. I know that you're starting your academy soon, inshallah. But what have you picked up in terms of the vibe that is Karachi? Have things stabilized here? Have things gotten better? I really believe that the Rangers have made a big difference, especially in the area, local areas. And I speak to a lot of the local people, and they do say that the Rangers have helped. The army is amazing over here as well in Pakistan, and they are making a difference. People are a lot safer now than they used to feel. It's a beautiful country, you know, that's why I keep coming back. Well, I'm glad. Tell me about, I must ask this. Tell me about the last bout. What happened with Suarez? You know, I want to take new challenges in life. Everything was going fine in the early rounds. I was hitting him and moving. And look, it only takes one punch in boxing. You could be winning the fight and you get caught with that one big shot. But for me, as a learning curve, it was amazing. And I will come back stronger. And for the country, for Pakistan, where I'm from, you know, it puts Pakistan on the map, because I think this is the first ever fighter to be representing on the world stage for Pakistan. Now, I know that you've always wanted to fight at least the Olympics level for Pakistan. I was just reading a report from a British newspaper that if you wear Pakistan's colours and not the UK's colours, your popularity in the UK is doomed. What does being a British boxer have to do with being a Pakistani at the same time? You can be both, right? You know, I mean, the way the question came to me at that time was, being a British Pakistani, would you ever represent Pakistan? And the answer was yes, I would. I'd love to represent Pakistan. Even though I train in America, people still see me as a British Pakistani. So I think it's just sometimes media twists things and make one look bad. But look, one thing is my heart's clean, and I'd love to represent both countries. You've been to Lyari this time around? I met the boxers from Lyari. They come down. We trained together. Awesome. मेरे साथ आमिर खान, डाउन बट नॉट आउट, लॉस्ट हिज लास्ट फाइट, बट कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वापस आएंगे। एकेडमी इस्लामाबाद में शुरू करने वाले हैं, नेशनल जाएंगे। ही वर्क्स विद द रेंजर्स। लियारी में जो स्टेबलाइजेशन लाए हैं लियारी को नॉर्मलाइज करने के लिए, आमिर's been a great friend of Karachi, as have they been the Rangers. They've worked together. Listen, great seeing you. Thank you very much. I appreciate it. Break a leg, and next time I'm going to see you in the ring probably. For sure. With or without the Rangers. Thank you. All right, man. Take care. Thank you very much. Take care. Cheers. See you soon, yeah. Amir Khan, the one and only King Khan. मैं अब आपको दिखाता हूँ, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आए हैं। इधर खाली सलामी नहीं होती, इधर खाली आमिर खान साहब नहीं आते, इधर थोड़ी बहुत ड्यूटी भी होती है। स्टार्ट रेंजर्स का ऑपरेशन, रोज आप कहते हैं रेंजर्स ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन, रेंजर्स ऑपरेशन। वो जिधर से शुरू होता है ना, सुबह 6-7 बजे जिधर से शुरू होता है, वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। आए मेरे साथ। Welcome to Rangers headquarters. Jinnah Courts कहते हैं आम ज़बान में, but official name इसका था Leslie Wilson Muslim Hostel, founded in 1932, 1933 में बना, 1932 में construction इसकी शुरू हुई. Of course, associated with young Muslim men जो इधर पढ़ते थे, साथ ही कॉमर्स कॉलेज है, बाकी कैंपसेस लगते हैं, मगर इसे unfortunately टेक ओवर करना पड़ा जब रेंजर्स की IS ड्यूटी लगी. जब कराची में पहला ऑपरेशन 90s में शुरू हुआ, तो ऐसी एक लोकेशन चाहिए थी जो सेंट्रल रेड जोन के अंदर हो. इस वक्त हम आई डोंट नो कितने लोग आप वाकिफ़ हैं कराची में, बट रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जो मेन इधर 5 स्टार होटल्स हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस सामने है, गवर्नर हाउस सामने है, इसे रेड जोन कहा जाता है. इस्लामाबाद का रेड जोन आपने सुना होगा, मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इधर स्टेशन होना रेंजर्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इंस्टॉलेशन सब जो हैं मेन आपकी वो इधर हैं. और रेंजर्स का जो गेम है शुरू, वो कैसे ऑपरेशनली शुरू होता है. ये इनकी कमांड स्क्रीन है.
एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। अब 1200 कैमरे हैं जो कराची में अलग अलग लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास, वो मॉनिटर होते हैं अलग अलग रीजंस के लिए। जनरली थ्रेट अलर्ट हो, फ़र्ज करें सदर में थ्रेट है या गार्डन में थ्रेट है, तो ये इधर से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। ये 24/7 चलती रहती है। ये आपका इंसिडेंट अपडेट्स है, रियल टाइम में हो रहा है। कराची में पिछले 24 घंटे के दौरान जो एक्शन हुआ है, अच्छा या बुरा, वो इस पे मैप्ड आउट है। अभी आप देखें, जो ग्रीन वाले हैं वो विंग्स हैं जो जिन्होंने इन इलाकों में रेड्स किए हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाले रेड्स हैं। ये जो ब्लू वाले हैं, इस पे जो ब्लू बना हुआ है, ये पुलिस के इनकाउंटर हैं, ये पुलिस ने एक्शन इधर किया हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो रेड वाले हैं ये क्राइम्स हैं, किलिंग्स हैं। अब ये आप देख सकते हैं ईस्ट में मलीर कैंट में, लांडी में अनसेफ एरियाज़, और ये वेस्ट में मेरा ख्याल है मंगू पीर साइड या कटी पहाड़ी साइड, ऐसी कुछ साइड पे वेस्ट में और ईस्ट में जो मेन थ्रेट के आप कह लें या इंस्टेबिलिटी के एरियाज़ हैं, उधर ये मैपिंग होती रहती है। तो आप एट एनी गिवन टाइम, आप रेंजर अफसर हैं, आप कमांडर हैं, आप जो भी हैं, आप आके देख सकते हैं कि शहर के हालात कैसे हैं। अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये सिंध का मैप है, 912 किलोमीटर जनाब आपका लगता है एरिया। रेंजर्स 43 में जब बने, इनका नाम था सिंध पुलिस राइफल्स, 48 में इनका नाम हो गया सिंध पुलिस रेंजर्स, 58 में इनका नाम हो गया वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स, 71 में इनका नाम हो गया पाकिस्तान रेंजर्स, 95 में इनका नाम हो गया पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। ड्यूटी रेंजर्स की ओरिजिनली बॉर्डर की है, 912 किलोमीटर लंबा बॉर्डर आपका लगता है भारत के साथ। मेन चीज इज दैट्स बिकॉज देयर आर पैरामिलिट्री बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स, ये इनका काम है। मगर अनफॉर्चुनेटली कराची के ऐसे हालात हुए कि ये जो ड्यूटी है, ये IS ड्यूटी, एड टू सिविल पावर ड्यूटी के जो इधर हुक्मरान है सिविलियन, उनकी मदद करना, ये आप इसलिए रेंजर्स कराची में बैठे हैं। जितने रेंजर्स कराची में हैं उससे ज़्यादा आपके रेंजर्स बॉर्डर पे हैं। मगर वो तो बॉर्डर की बात छोड़ें, व्हेन इट कम्स टू कीपिंग ट्रैक कि बात लोगों से कैसे करनी है, कराची वालों के साथ इंसिडेंट्स जो हैं, और नॉट जस्ट कराची, हैदराबाद वगैरह भी इंसिडेंट्स जो हैं कि ईजिली रिपोर्ट हों, एक नई सर्विस शुरू की है। ये व्हाट्सएप से इस बंदे ने भेजी है। अब ये कह रहा है सर हमें डॉक्टर कॉलोनी नियर बोन क्लिनिक हॉस्पिटल है हैदराबाद में, एरिया का गुंडे नासिर भत्ते के लिए तंग कर रहे हैं, हमारी बेकरी का काम है सर, वो 50,000 भत्ता मांग रहा है सर, प्लीज़ हमें इन लोगों से जान छुड़ाएं। साथ उसने तस्वीर भी दी हुई है, ठीक है। अब ये आपने भेज दिया हैदराबाद से, आप बेकरी चला रहे हैं, आपने मैसेज कर दिया हुआ है, ये रिस्पॉन्स आता है, आपकी कंप्लेंट रिसीव हो गई है, हमारी टीम जल्दी आपसे रब्ता करेगी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं, बहुत शुक्रिया तब उनका। अब ये जो आपका जो क्लासिक जो इंटरेक्शन था, थाने जाओ, हाजिर लाइन लगो, SHO से बात करो, सिफारिशें करवाओ, इसको उसको, और इवन फ्रैंकली किसी रेंजर्स चौकी पे जाओ, डर लगता है ना, वेपन लेके रेंजर्स का जवान खड़ा हुआ है, ऐनक उसने लगाई है। सो वो जो है ट्रेपिडेशन जो है, डर है, उसको ख़त्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए ये जो सर्विस है ये उन्होंने शुरू की है। तो अगेन दिखाने का मकसद ऑप सेंटर का ये है कि हो क्या क्या सकता है। स्मार्ट वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम, आपका शनाख्ती कार्ड लेगा, आपका नंबर इसमें डालेगा, अगर आपका शनाख्ती कार्ड ओके है थैंक यू करके आपको फारिग कर देगा, अगर नॉट ओके है, अगर जाली है, अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको आप बेटा आप जरा इधर आए। तो अगेन ऑटोमेटेड टू इंक्रीज इंटरैक्शन। ऑब्वियसली वाइस चॉइस दुनिया टीवी देखा जा रहा है, ये मैं ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा, ये इनका डिप्लॉयमेंट मैप है। आपको जो ब्लैक लाइनें नज़र आ रही हैं ये इनके विंग्स हैं, 15 विंग लगते हैं जनाब, और जो ग्रीन लाइनें नज़र आ रही हैं ये इनके सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, हर सेक्टर को फुल कर्नल चलाता है, 15 विंग हैं, हर विंग को लेफ्टिनेंट कर्नल चलाता है। बट क्राइम फाइटिंग रियल टाइम में ये रैपिड ये सब चल रही है मॉनिटरिंग, मगर ये जो चल रही है ना ये रैपिड रिस्पांस को के लिए है। अब ये 3 अलग इनके सेक्टर हैं, ब्लू वाले अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, पर्पल वाले भटाई हैं, और ये लेफ्ट वाले जो हैं सचल है। कराची 3 इन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पेशावर APS और NAP और इस सब के बाद ये अर्ज बड़ी है, इसमें आपके शॉपिंग मॉल्स, इसमें आपके बैंक्स, इसमें आपके हॉस्पिटल्स की भी कैपेसिटी है। स्क्रीन अलग तरीके से लिटअप हो सकती है। मैंने इस वक्त स्कूल्स दिखाने हैं आपको, बिकॉज स्कूल्स आर अंडर थ्रेट। स्कूल ने खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है अटैक या वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है, फ़ोन करता है, इस वाले पे जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये अल सईद अकेडमी है, ये इसका नंबर है
इधर हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 40 विंग अल्फा कंपनी इधर लग रही है। अब वो जो है आपके आसपास, व्हाट्स आल्सो इंटरेस्टिंग कि रेंजर्स की जो कैपेसिटी है, जो उनकी गाड़ियां शाड़ियां चल रही हैं, वो उससे व्हीकल से आप जाके कनेक्ट करेंगे। व्हीकल्स पे गए, अप्लाई किया, और जो आसपास जो आपकी ये रेड आ गई है ना, ये एकदम पॉपअप हो गई हैं, ये इस वक्त रेंजर्स के अब सबसे करीब जो है वो ये वाली गाड़ी चल रही। तो इधर जो हैं कमांडर्स, वो देख सकते हैं कि सबसे करीब मेरी 2 गाड़ियां हैं। भटाई रेंजर्स की 40 विंग की गाड़ी है, ये गाड़ी का सेलफोन नंबर है। ठक करके कमांड सेंटर से, इधर से RSMC से फोन जाएगा रेंजर्स के उस पेट्रोल को कि भाईजान एक्शन लो immediately. That's the new interface of the Rangers. अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स की जा रही हैं। अगेन बोलूँगा ये इनका काम नहीं था, मगर जैसे मुझे कर्नल स्टाफ बताएंगे इधर के, कर्नल कैसर खट्टक, काम ये आपका हो गया। How are you, sir? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। Thanks for having us here. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे रेंजर सिचुएशन मैनेजमेंट सेंटर को। आई थिंक आपको यहाँ ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। ये जो IS की जो ड्यूटीज़ हैं कराची की, जो ख़ास नौयत की हैं, जो लाहौर में उधर के लोगों को नहीं ज़रूरत, जो इवन पेशावर कोयटा भी अनस्टेबल है, मगर इस किस्म की नहीं ज़रूरत। इज़ दिस बिकॉज कि कराची की जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो अलग नौयत की हैं, साइज़ इतना बड़ा है, प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट और सम अदर रीज़न? एब्सोल्युटली। कराची 2.5 करोड़ का शहर, उसके अंदर हर किस्म का प्रॉब्लम जो कि हो सकता है, कोई सोच सकता है, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर इसको हमने मॉनिटर करने के लिए वी हैव अ टीम टू लुक आफ्टर एवरी एस्पेक्ट, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, देन टू मॉनिटरिंग, और उसके बाद उसकी एवेलुएशन सब यहाँ पे करते हैं। बट एज़ यू नो, जो हमारी आयत ऊपर लगी हुई है, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। इंडीड, तो जितनी प्लानिंग कर लें, बट अल्लाह इज़ इंडीड द बेस्ट प्लानर। कर्नल साहब, मैंने सुना है थोड़ी डूइंग भी होती है रेंजर्स में, सो विद योर परमिशन आगे जाके कोई ठाठू भी हो जाए? एब्सोल्युटली, 2 हाथ हो जाए, प्लीज़ आइए। वेलकम टू कराची, वेलकम टू लियारी, मेरा फेवरेट शहर और मेरा फेवरेट नेबरहुड। ये लियारी ऐसा था नहीं, ये अली मोहम्मद कमरानी बॉक्सिंग स्टेडियम एंड ग्राउंड है। बिलीव इट और नॉट, लाइव टूर्नामेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं। 2 टीम्स हैं लियारी की, जो इस वक्त फाइनल 0-0 पे ड्रॉ हुआ है, और अब पेनल्टीज हो रही हैं। एक और किक, आज गोलकीपर्स का दिन लग रहा है। बट अगेन मैं पूछूंगा आज के महाज में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो शायद पाकिस्तान का सबसे वायलेंट शहर भी था, उसमें क्राइम रिड्यूस हुआ है तो कितना हुआ है, कैसा हुआ है? वो अदाद शुमार जो रेंजर्स ऑपरेशन से पहले कुछ और थे, आज कुछ और कैसे हो गए हैं? रेंजर्स ने नैरेटिव गेम चेंज कैसे किया है? पाक फौज का क्या किरदार है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं? पेटी क्राइम किधर चला गया है? ये जो नारकोटिक्स वाले थे, स्मगलर जो थे, भत्ता माफिया, वाटर माफिया, वो गायब हुए हैं तो किधर हुए हैं? Where have all the criminals gone and what have the Rangers achieved? ये है आज का महाज। मैं हूं उजाज सईद खान। You've got to watch this show. ज़्यादा शायकीन जो हैं वो स्टेडियम छोड़ के ग्राउंड में आ गए हैं। डिसिप्लिन किया जा रहा है, टोटल कंट्रोल नहीं है शायद लियारी के लोगों को अपने इमोशंस पे। ये एक और किक, दैट्स अ गोल। मगर कराची को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिसाइड्स बीइंग द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप 2 टॉप 3 में शुमार होता है कराची का। बॉटम लाइन ये है, एक साल में 35,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स कराची आते हैं। एक हाउस होल्ड अगर आप उस हिसाब से 5 लोगों का भी रखें, 1.5-2 लाख लोग हर साल कराची
आते हैं, ये खाली इमिग्रेशन नंबर्स है, ये नेचुरल जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो नहीं है। एक और गोल। सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन कराची? रेंजर्स ऑपरेशन से पहले अगर आप थ्रेट मैट्रिक्स करें, और एक और गोल। रेंजर्स ऑपरेशन से पहले अगर आप थ्रेट मैट्रिक्स करें, क्योंकि डेटा इतना हैवी है, मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। सेक्टेरियन आउटफिट्स जो इधर ऑपरेट कर रहे थे, उनमें LEJ जो सुन्नी तहरीक है, ISO वगैरह, वो एक अलग एंगल था। फिर बैंड प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें कहा जाता है, TTP, मेन TTP स्वात, TTP ममान, TTP बाजोर, अलग अलग लोग। फिर ऑफ कोर्स माफियाज जो जब भी थी अब भी हैं, इफेक्ट कम हुआ है मगर हैं। किलिंग फॉर रैंसम वाले जो ग्रुप्स हैं जो भत्ता लेते थे वरना मार देते थे लोगों को। मोर देन एनीथिंग पॉलिटिकल डिवाइड। इफ्तिखार चौधरी ने भी फेमस किया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मिलिटेंट विंग है, मगर probably no militant wings like the Karachi political party militant wings। इस किस्म के इवन इधर जो पार्टीज जिनका इधर कम ताल्लुक है, जैसे PML नून का इधर ज़्यादा होल्ड नहीं है, उनके लीडर्स को भी, उनके लोगों को भी टारगेट किया गया है बाय द विंग्स ऑफ अदर पार्टीज। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली सब नेशनलिस्ट भी इधर लगते हैं, खाली बलोचिस्तान में कौम परस्त नहीं, इधर भी हैं। GA सिंध कहता है हमें अलग सूबा दो। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? SNF नाम सुना है? नहीं सुना? आप सुन लें। सिंध नेशनल फ्रंट पिछले दिनों चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक किया। एक और सिंधु देश लिबरेशन फ्रंट ने, पहले नाम नहीं सुना था आपने, मगर अब आप सुनेंगे, बिकॉज कराची इज जस्ट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। एंड मोर देन एनीथिंग जो आम बंदे को मसला है उससे, पेटी स्ट्रीट क्राइम, यंग पीपल, दीज गाइज दे लव सॉकर। ठीक है, फुटबॉल के शौकीन है, लियारी अपने स्पोर्ट्समैन के लिए फेमस है, मगर ये एक माइक्रोकॉज़म है, ये एक मिसाल है पूरे कराची के लिए कि अगर इसे बचाया जा सकता है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इतनी लंबी मैंने आपको लिस्ट सुनाई है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स अगर कराची को बचाया जा सकता है तो किस तरीके से, कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कायम अली शाह साहब, DG रेंजर्स जो साबिक थे आजकल DG ISI हैं, जनरल रिजवान अख्तर, ऑफ कोर्स द करंट DG रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर, मोर देन एनीवन जनरल राहील शरीफ। हाउ हैव दीज जेंटलमैन, ये साथ इकट्ठे कैसे हुए हैं? विजन क्या हुई है? कराची को अगर कंट्रोल किया है तो कैसे किया है? नाजना की जी नाजना वो शौक कसकनी कुल साजना उस्ते दरे लुसबाद। ये होता नहीं था, ये हो रहा है अगेन। पोस्ट ऑपरेशन लियारी इज अ वेरी डिफरेंट सिटी, बहुत फर्क पड़ गया है। तो अब अमन है? वो अमन है, 80% अमन है, खुदा की कसम। अभी 10% 20% रह गया। कैसे? ऐसे कि थोड़ा बहुत ये उका दुका मोबाइल छीनते हैं, ये कोई रास्ते में जाते रिक्शे से उतार के छीनते हैं, ये मगर तो 80% बेहतर हुआ है। कैसे हुआ? वो तो है राय शरीफ की वजह से, आप लोग की वजह से। राहिल शरीफ साहब ने क्या किया? राय शरीफ ने पूरा कंट्रोल किया है। DG रेंजर्स के वजह से। DG रेंजर्स ने क्या किया? बहुत कुछ किया है सर, उसका आने से बहुत अमन हुआ। देखो ना चारों तरफ कितना अमन हो गया, बाजार खुले हैं, दुकान खुले। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम आप दोनों राहिल शरीफ के और DG रेंजर के दोस्त तो नहीं? जिंदाबाद सर, पाकिस्तान DG रेंजर जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इसमें जो आपके जो PPP वाले हैं, बाकी जिनको आप वोट देते हैं, उनका नहीं काम? उसका क्या काम है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और क्या काम है PPP का सर? इंटरेस्टिंग, मेहरबानी, थैंक यू। सुना जी आपने, राहिल शरीफ साहब को इधर कह रहे हैं वोट देंगे, DG रेंजर्स को कहते हैं इधर वोट देंगे। इज दैट अ हेल्दी थॉट? एब्सोल्युटली नॉट। वो सोल्जर्स हैं, वो सिपाही हैं, उन्हें वोट नहीं मिलने चाहिए, ना वो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं। तो आम आदमी लियारी में क्यों कहता है कि मैंने राहिल शरीफ या DG रेंजर को वोट देना है? अनबिलीवेबल। मगर स्टेबलाइजेशन का ये शायद एक साइड इफेक्ट है। और ये भी क्लियरली कह रहे हैं कि PPP का जो होल्ड था लियारी में फेमस, वो नहीं रहा। अगेन, लियारी आओ और बॉक्सिंग ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये हो नहीं रहा था, हाँ, ये हो नहीं रहा था, ये हो गया है, ये हो गया है। मगर एट ए कॉस्ट, वो रेंजर खड़ा है, वो रेंजर खड़ा है, वो रेंजर खड़ा है, कुछ मुझे गार्ड कर रहे हैं, कुछ इन्हें गार्ड कर रहे हैं, मगर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेंजर्स ये नॉर्मल सी
आइए, मैं बॉक्सर से ही पूछता हूँ, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। कब से रह रहे हो लियारी में? बचपन से यहीं पे रह रहा हूँ। इलाका किसका है सियासी तौर पर? सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी का। मगर पीपल्स पार्टी के लोग आते जाते नहीं हैं। नहीं आते। रेंजेस नजर आते हैं। जी रेंजर्स आती है। तो इधर ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे जी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वैसे मैं इंजीनियर हूँ। हो? हालात क्या हैं तुम्हारे मोहल्ले के? हालात तो बहुत अच्छे हो गए माशाल्लाह, रेंजर्स ने काबू कर लिया। फायदा क्या हुआ रेंजर्स के आने का? यहाँ अमन हो गया है। गैंग वॉर फारिग कर दिया रेंजर्स ने। थैंक यू न्याजी। So again you heard him, first hand knowledge रेंजर्स ने बदला है और बॉक्सिंग रिंग में जो लिबर्टी आई है राइट है उस तक को बदला है। सो अब कमरानी फुटबॉल ग्राउंड से हम जा रहे हैं खजूर मार्केट, ऐसा एरिया जो बंद हो जाता था, एक्सटॉर्शन होती थी, लोग दुकानें छोड़ के चले गए थे, वो आजकल कैसा है? लियारी कंटिन्यूज एंड सो डज लियारी का महाज। Babule sireshma be malle Babule sireshma be malle Urdale sireshma be malle Urdale sireshma be malle वेलकम टू खजूर मार्केट, लियारी का एक कि ऐसी जगह जो मैंने पहले नहीं देखी थी। अगेन लियारी शहर के अंदर शहर है। क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? ये खजूर मार्केट है, यही है ऑफ कोर्स। कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी खजूर मार्केट इधर से है। लियारी शट डाउन हो जाता था 6:37 डन। इस वक्त बाय द वे इस वक्त तक सीन नहीं रहता था। सो अगेन वो हालात कहा जा रहा है नहीं रहे, मगर मेन चीज इज दिस डिडंट हैपन, ये नहीं हो रहा था। अब कैसे हो रहा है, मैं इधर के जो ताजिर हैं, जो इधर के इन्फ्लुएंशियल्स हैं, बड़े हैं, उनसे पूछता हूँ। तो जावेद साहब, आप कन्फेक्शनरी चलाते हैं इधर, तो एक दौर था आप कह रहे हैं कि लोग हिजरत कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल हालात बहुत ख़राब थे। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने करम किया, अब दोबारा से जो है ये मार्केट अपने उरूज की तरफ जा रही है। हो क्या रहा था, डिफाइन करें। अभी शाम के 7:30-8 बजने वाले हैं, ये तो मार्केट लग रहा है अभी खुली है। जी हाँ, अब तो देखें, आप खुद देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ चलने की जगह भी है। पहले बंद कैसे होती थी? 2 सेकंड लगते हैं सर, एक गोली चली और मार्केटें बंद हो गई। हुआ क्या है, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई गोली चलती है, ना कोई खौफ है, ना कोई बत्ता मांगने वाला है। इस तरह का कोई भी मतलब वो सिलसिला नहीं है। और हुआ कैसे? जवानों की कुर्बानियाँ हैं, इनकी रेंजर्स एहलकारों की, पुलिस एहलकारों की। ये दुकान है आपकी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आप? दिलावर। क्या करते हैं दिलावर? हम ये दुकान उनके साथ ही काम करते हैं। अकाउंटिंग हो रही है जी। क्या हिसाब किताब है? बस हिसाब किताब क्लोज कर रहा हूँ बस सारा। प्रॉफिट चल रहा है आजकल के नहीं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। वो बिल्कुल गौर से आप देखेंगे, एक होल दिख रहा होगा आपको। जी होल नजर आ रहा है, वो सुराख, ये उस दौर की निशानी। ये फायर है? बिल्कुल आपकी दुकान पे हुआ था? बिल्कुल सर। किसने किया था? अब उस दौर के जो थे, अब वो तो मर गए। वो फायर का निशान आई डोंट नो अगर आपको नजर आ रहा है, वो स्ट्रेट अप, वो गोल वाला ऊपर चिप्स के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो जमाना क्या? वो जमाना चला गया सर। चलें, गुड टू नो जावेद साहब, गुड लक। तो देख रहे हैं जी आप, अगेन मुझे बोला जा रहा है कि इस वक्त ये मार्केट बंद हो जाती थी। क्लियरली बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने काम कम किया है, पुलिस ने, रेंजर्स ने काम ज़्यादा किया। ऑब्वियसली कायम अली शाह साहब का ये तो नहीं रोल कि वो आके इधर मोर्चे संभालें, उन्होंने ही साइन ऑफ किया है, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप के तहत ही ये सब हुआ है। मगर अगेन इट्स गुड टू सी कि लियारी जो कराची के शहर के अंदर एक और शहर है, कम लोग इस डिटेल से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ का जनरल काउंसलर हूँ इस इलाके का ना, हमाद अब्बासी। क्या नाम है आपका? हमाद अब्बासी। बताइए। रेंजर्स ने काफ़ी यहाँ पे कंट्रोलिंग की है, पेट्रोलिंग करके इस एरिया को बहुत ज़्यादा बदअमनी से ख़त्म करके बहुत साफ़ किया है ना इस एरिया को। सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे होता है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये खजूर बाज़ार की। तो एशिया की? जी एशिया की। मुझे ये बताएं, ओवरऑल इस वक्त किस किस्म का क्राइम रह गया? ये तो मैं बिलीव नहीं करता कि 100% अमन आ गया है। देखिए ना, गैंगवार इस वजह से आए थे कि उन्होंने हमने अपने सर पे खुद उनको मुसल्लत किया था, ठीक है।
वरना गैंगवार की ताकत नहीं थी। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 100 में से जो 20% जो लोग हैं ना, जैसे स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वो वारदात करते हैं, मोबाइल लूटते हैं, वो निकलते हैं, वो लोग ख़त्म नहीं हुए। बाकी गैंगवार को आप कहते हो, गैंगवार जो आती थी 5 मिनट के अंदर पूरा खजूर बाजार नहीं, पूरा लियारी बंद हो जाता था, वो ख़त्म हो गया है। अब ऐसा वाकया 2 साल से हमने नहीं देखा कि कोई खजूर बाजार या पूरा लियारी बंद करवा सके। इंटरेस्टिंग, थैंक यू काउंसलर साहब, थैंक यू। थैंक सुना जी आपने, लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया, मैं भी थोड़ा सा गुम गया हूँ, मैं हालत दालें शालें भी आ गई हैं, इधर ही मैं नहीं, द मार्केट कंटिन्यूज। आए आगे लेके चलता हूँ आपको। फ्रूट खाना ज़रूरी है। क्या हालात हैं? 20 रुपये किलो। नहीं नहीं, हिसाब नहीं पूछ रहा, हालात पूछ रहा हूँ शहर के। हालात बहुत अच्छे हैं। हाँ, काटो ना बॉस। खाओ। तो अमन कायम है जी, रेंजर की मदद से, शुक्र है अमन कायम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। आपकी दुकान है? हाँ जी। कब सुबह कब लगाते हो? सुबह 10 बजे। ख़त्म कब करते हो? रात के 2 बजे। पहले कैसे होता था? पहले तो बहुत हालात बहुत ख़राब थे। 8 बजे हम लोग बंद करके चले जाते। शुक्र है अल्लाह पाक का, रेंजर की मदद से बड़ी हुआ है। और नहीं तो होता क्या था, लोग आके गुंडे तंग करते थे, फायरिंग होती थी, क्यों? डर की वजह से आता ही कोई नहीं, ग्राहक ही नहीं आता था शाम को। अभी बहुत अम्मा ने बहुत सुकून है। और किया किसने? रेंजर की मदद से, अल्लाह पाक की मदद से। ऐसे तो नहीं कह रहे क्योंकि खड़े में? नहीं। इससे अल्लाह पाक माफ़ी देवे, हम खुशामद वाली बात नहीं कर रहे हैं, सीरियस कर रहे हैं सर। इसका कोई हिसाब नहीं, किताब बहुत नहीं? पक्की बात है? पक्की बात। थैंक यू। थैंक यू। सुना, मैं फ्रूट नहीं रिजेस्ट कर सकता, थक भी गया हूँ। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे। हालात बेहतर हैं? साथ जी हालात इतने बेहतर है, मैं 2-3 साल से ना अपने हाथ में मोबाइल लेके फिरता हूँ, आज तक मेरे से मोबाइल किसी ने नहीं छीना। ये हालात इस पोजीशन पे चले गए हैं। माशाल्लाह बोला कर बॉस, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह के हालात हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा। बड़ा हुआ हूँ मैं इस शहर में। एक ज़माने में इधर साइकिल के टायर बड़े अच्छे बनते थे, ट्यूबें बनती थी, लीम मार्केट वॉज फेमस फॉर इट्स हार्डवेयर, टॉय शॉप्स बड़ी फेमस थी। मगर ये एक डोंट गो टू लीम मार्केट एरिया बन चुका था, बन गया था। थिंग्स हैव चेंज्ड, और कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज गाइस, द रेंजर्स। गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में मूव कर रहा हूँ लीम मार्केट से बैक इनटू लियारी, और LMG लगी हुई है। क्या हाल है? बिल्कुल खैर खैरियत। क्या नाम है आपका? खिजर, लास्ट ना खिजर। क्या हालात हैं खिजर लियारी के? 61 विंग। और विंग के क्या हालात हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। पहले तो होता था कि रेंजर से लोग डरते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पक्की गल है। तो अगेन, अगर आप ओवरऑल देखें, द मैडनेस ऑफ कराची आपको नजर आती है, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। मगर ये इलाके ऐसे रिसेंटली, टिल रिसेंटली थे नहीं, हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ 8 चौक से, 8 चौक पे 8 रोडें लगती हैं, लियारी का दिल कहा जाता है। ऑल रोड्स इन लियारी लीड टू 8 चौक। उसके बाद मैं जा रहा हूँ चील चौक। चील चौक को चील चौक क्यों कहते हैं? झील चौक कहते हैं इसलिए कि इधर बहुत पहले चीलें वगैरह होती थी। चीलें वगैरह होती थी, आज भी उधर एक बहुत बड़ी चील बनी हुई है पीपल्स पार्टी के ज़माने से। बट बॉटम लाइन, ये नो-गो एरियाज थे। जो बिल्डिंग्स पे जो हिट्स हुई हुई हैं, जो इधर हैवी वेपन लियारी गैंग वॉर वाले यूज़ करते थे, वो सब कैसे बदला है और लियारी की कैपेसिटी कैसे बिल्ड हुई है। रात के 9 बजे ऐसे होटलों में लोग बैठते थे, नहीं बैठते थे, ऐसे ख़वातीन फिरती थी या नहीं फिरती थी, ऐसे लोडिंग होती थी बसों में या नहीं होती थी। ये सवाल अब मैं जाके पूछूंगा रेंजर से भी और आम चील चौक और 8 चौक के लोगों से भी। मैं चाह रहा था चील चौक दिखाऊं मगर लाइट गई हुई है। ये पीछे मेमनों का कब्रिस्तान है। ये एरिया था जिधर MQM और गैंग वॉर्स
इधर तसादम ज़्यादा होता था। MQM का बताया जाता है कि MQM के एलिमेंट्स क्रिमिनल एलिमेंट्स, नॉट द पॉलिटिकल एलिमेंट्स। पॉलिटिकल एलिमेंट्स की हम इज्जत करते हैं, उनको हम वोट देते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। वो इधर से MQM के क्रिमिनल एलिमेंट्स और गैंग वॉर के एलिमेंट्स लगते थे ठक इधर। कहा जाता है कि MQM वाले भत्ते के लिए आते थे और गैंग वॉर वाले अपने टर्फ को इधर से प्रोटेक्ट करते थे। ये मेमन के कब्रिस्तान में, मेमनों के कब्रिस्तान में कहा जाता है इधर जनाजे आना बंद हो गए थे, ये हालात हो गए थे। अब वो रहा चील चौक, अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ, ओल्ड सिटी की तरफ। अगेन लाइट कम है, मगर मैं अब ऐसे एरिया में रोकूंगा, कोशिश करूंगा जिधर लाइट हो, जिधर मैं आपको दिखा सकूं कि जो इन्हांस कैपेसिटी है जो रेंजर्स की, अब ये वो वाले रेंजर्स नहीं रहे जो गाड़ी हाथ को इशारा करके शनाख्ती कार्ड चेक करते थे। कुछ और हो रहा है। अब मैं आ गया हूँ गार्डन, और अगर आपको गार्डन में गार्डन देखने का शौक है तो दिस इज़ द रॉन्ग गार्डन। ये वो वाला गार्डन नहीं है। ये वो वाला गार्डन है जिधर अगेन इधर सेक्टेरियन आउटफिट्स, इधर MQM के एलिमेंट्स, इधर सुन्नी तहरीक वगैरह सब ने ऑपरेट किया हुआ है और सब ने अपनी तरफ से अपनी अपनी बदमाशी की हुई है। 4 सितंबर 2013 को ये डिसाइड किया गया जब नई हुकूमत आई और एक नए DG रेंजर्स रिजवान अख्तर साहब लगे जो आजकल DG ISI हैं। तो नई हुकूमत ने, उस टाइम के आर्मी चीफ ने, DG रेंजर्स ने, कायम अली शाह साहब ने, मियाँ साहब ने वगैरह ने डिसाइड किया कि एक 3-tiered ऑपरेशन शुरू होगा। उसमें अलग अलग कमेटियाँ होंगी। एक ऑपरेशनल कमेटी होगी जिसे DG रेंजर्स लीड करेंगे, एक लॉ कमेटी होगी जिसे सियासतदान लीड करेंगे, और एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जिसे भी सियासतदान लीड करेंगे। मगर एक ट्रायंगुलेटेड एफर्ट जिसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत, गवर्नर साहब एंड ऑफ कोर्स पुलिस एंड रेंजर्स इंडक्ट हों, उस हिसाब से आर्मी की ब्लेसिंग्स के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। आज भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन कब ख़त्म होगा। एंड स्टेट, अगर आप फौज से पूछें, रेंजर से पूछें, एंड स्टेट जब ख़त्म होगी जब मैं, आप बगैर रेंजर्स की नफरी के जो भी घड़ी पहनी हो, जो भी जेब में हो, गार्डन जैसे इलाके में फिर सकेंगे। क्राइम कितना रिड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है, रेंजर्स के क्या चेकिंग्स हैं, रेंजर्स के क्या नई कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको अब मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। आए मेरे साथ। अब अक्सर अगर आप कराची के बाशिंदे हैं, आपने ये देखा होगा या आपके साथ या खुदा न खास्ता आपकी फैमिली के साथ हुआ होगा कि ये हो रहा है आपके साथ। ये स्नैप चेकिंग कहते हैं इसे। पहले स्नैप चेकिंग ऐसे होती नहीं थी, अब होगी। एक बंदा व्हीकल को चेक करता है, एक बंदा फिजिकल तलाशी लेता है। अच्छा, अब फिर ऑब्वियसली आईडी प्रोड्यूस होती है। आईडी जब प्रोड्यूस होती है, शिनाख्ती कार्ड दिखाया जाता है। शिनाख्ती कार्ड जो सीनियर अफसर है वो देखता है, मगर सीनियर अफसर तो फिर भी मतलब उसकी खाली आइज़ एंड ईयर्स है ना, मगर वो फिर ट्रांसफ़र करता है। ये जो नई डिवाइस आई है आपके पास, ये हाथ पे पहनी होती है लड़कों ने। अब आप अगर देखें कि इधर से ये जो ठाकुर साहब हैं, इन्होंने जो नंबर है बंदे का वो डाला, और जो मौला बख्श हैं इधर जो रैट हैं उन्होंने फीड इन कर दिया। नादरा का जो डेटाबेस है उसमें अब ये लिंक इन कर गए हैं। वो अगर आपको बताएगा अगर ये जाली शनाख्ती कार्ड है, अगर कोई मसला है, उसी वक्त थ्रू द इंटरनेट वेरिफिकेशन होगी डेटाबेस से। इसके तहत साइट पे पुल करना, फिजिकल तलाशी लेना, इस सब से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दी एफिशिएंसी ऑफ क्राइम फाइटिंग इंक्रीज़ हो रही है, और कैसे इंक्रीज़ हो रही है और कैसे क्राइम डिक्रीज़ हो रहा है, इधर के जो विंग कमांडर साहब हैं, कर्नल शाहिद साहब, उनसे मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग महाज इन योर AOR। ये मैं आपको थोड़ा सा स्नैप चेकिंग के बारे में बता दूं।
कि बेसिकली करते क्यों हैं सर? स्नैप चेकिंग का जो मकसद है, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और स्पेशली जो स्नैचिंग है और क्रिमिनल्स दोज हु आर ट्राइंग टू रन अवे, तो यहाँ पे रैंडमली गाड़ियों की चेकिंग होती है, मोटरसाइकिल्स हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं। ये जो डिवाइस है, ये जो इन्होंने डिवाइस पहनी हुई है, दिस इज समथिंग न्यू। ये कब इंट्रोड्यूस हुई है एंड एम आई राइट टू से कि ये नादरा से टच लिंक इन करती है और उधर से वेरीफाई होता है? यू राइट, ये स्मार्ट वेरिफिकेशन एंड अलर्ट सिस्टम है। ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये एक हमें डायरेक्ट एक्सेस दी गई है, जिसमें CNIC डालेंगे तो उससे जो डिटेल्स हैं, उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, रिकॉर्ड है, वो इसके ऊपर आ जाएगा। सो कर्नल साहब, ये पहले नहीं था, दिस एफिशिएंसी इज न्यू। ये कैसे हुआ? बिकॉज पब्लिक डिमांड थी या जॉब की डिमांड थी? बिकॉज इन अ वे रेंजर्स को बैड प्रेस भी बहुत मिलता है। कहते हैं कि रफ हैं, कहते हैं कि टफ हैं, कहते हैं कि मारधाड़ होती है। ये बैड प्रेस मिलता रहा है। इज दिस टू मेक थिंग्स मोर एफिशिएंट? जब इन लोगों के साथ डील करते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वन हैज़ टू बी रफ एंड टफ, लेकिन जो बाकी लोग हैं, पब्लिक है, आम लोग हैं, उनके साथ वी मेक श्योर कि जो हमारे ट्रुप्स हैं, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बातचीत इस तरीके से करें जहाँ पे किसी की इज़्ज़त नफ्स मुतासर ना हो। Colonel Shahid Khan of the 82 Wing, thank you so much, sir. Welcome, thank you very much. Colonel Shahid Khan, again, कराची एक अर्बन जंगल है, नो डाउट, कॉन्क्रीट जंगल है, नो डाउट, उसकी डिमांड्स अलग हैं, मगर ये फिर से बताता चलूं, ये रोल रेंजर्स का नहीं था। अजान हो रही है, ये रोल रेंजर्स का नहीं था, हो गया, मगर उम्मीद है कि ये जो एफिशिएंसी है, इसके साथ साथ क्राइम फाइटिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, मेन जो थ्रस्ट था आपका TTP को, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, उसके साथ साथ जो पैरेलल एफर्ट्स थे आपके, किलिंग फॉर एक्सटॉर्शन और भत्ता शत्ता, और जो मैनेज एफर्ट्स थे कि MQM सीधी हो जाए, PPP सीधी हो जाए, लियारी गैंग वॉर सीधी हो जाए, अमन कमेटी सीधी हो जाए, सुन्नी तहरीक सीधी हो जाए, ये तीन मेन एफर्ट, पैरेलल एफर्ट और मैनेज एफर्ट ऐसे हों कि उम्मीद है, जैसे मुझे रिजवान अख्तर साहब ने कुछ अरसे पहले बताया था व्हेन ही वाज DG रेंजर्स, कि मेरे लिए इन द परफेक्ट वर्ल्ड रेंजर, एक रेंजर सड़क पे नहीं खड़ा होना चाहिए। दैट वुड बी द परफेक्ट वर्ल्ड फॉर द सिटी ऑफ कराची।